Hello students, I Kritika Sethi welcome you all on Epic Education. So I have already covered various topics on business studies. You can refer our channel for those videos. So let us start today's topic. I have already told that there are three levels of management: top level, middle level and lower level. Today in this video I will cover the topic top level management. All the details of top level management I will cover. So let us start. Top level management. Top level management consists of, there are various persons who are included in top level management like chairman, board of directors, managing director, general manager, president, vice president, chief executive officer, chief financial officer and chief operating officer. We have already covered this in previous video. So next point is, it includes group of crucial persons. I have already told you that these persons who are included in top level management, they are very crucial for our organization. Why they are very important? Because they play an important role in decision making. उनका एक डिसीजन आपके ऑर्गेनाइजेशन को हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा सकता है एंड उन्हीं का एक डिसीजन आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को स्पॉइल कर सकता है. सो दे आर द डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन. सो दे आर वेरी क्रूशियल पर्सन्स असेंशियल फॉर लीडिंग एंड डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ other people. Who are these other people? These are included in middle level and lower level management. So you can say top level managers also lead and direct the middle level and lower level मैनेजमेंट. आप कह सकते हो कि टॉप लेवल मैनेजर्स जो होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो मिडिल लेवल और लोअर लेवल को क्या करते हैं, गाइड करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि उनको काम कैसे करना है, क्या काम करना है. दे गिव इंस्ट्रक्शंस टू देम, दे गिव ऑर्डर्स टू देम. सो they have this work. Next is managers working at this level have maximum authority. We can say they have the foremost authority of the organization. सबसे ज़्यादा authority किसके पास होती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है. क्यों होती है? बिकॉज दे हैव द डिसीजन मेकिंग पावर. उन्हीं के पास सारे डिसीजंस लेने की पावर है. यू कैन से दे ऑल हैव द decision making power. So managers working at this level have the maximum authority. उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा authority होती है. So this is all about introduction of top level management. Now let us understand the functions of top level management कि ये top level managers, officers क्या क्या करते हैं. What is their role in our organization? So first is determining objectives. They determine the objectives of our organization. ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको पहले भी समझाया था. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड पॉइंट्स फॉर विच वी डू एवरी एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑब्जेक्टिव क्या होता है? और टारगेट्स और गोल्स और एम्स जिसके लिए हम सारी एक्टिविटीज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, राइट. सो टॉप लेवल मैनेजर्स फॉर्मुलेट द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. आप कह सकते हो कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उन्हीं के पास पावर या फिर अथॉरिटी होती है क्या करने के लिए? ऑब्जेक्टिव्स बनाने के लिए. चाहे वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हो या शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हो, ये ऑब्जेक्टिव्स कौन सेट करता है? टॉप लेवल मैनेजर्स सेट करते हैं. एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है. एन ऑब्जेक्टिव कैन बी सेट दैट इन द फॉलोइंग ईयर द सेल्स ऑफ द कंपनी हैज़ टू क्रॉस 1000 करोड़ रुपीज़. एक ऑब्जेक्टिव सेट किया गया, एक टारगेट सेट किया गया कि इस साल जो कंपनी की सेल्स हैं वो कितनी होनी चाहिए? 1000 करोड़ रुपीज़ होनी चाहिए. अब ये ऑब्जेक्टिव सेट कौन करेगा? दिस ऑब्जेक्टिव विल बी सेट बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट. सो दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज़ फ्रेमिंग पॉलिसीज़. कोई भी अगर पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, प्लान्स बनाने होते हैं, क्योंकि अगर आपको ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, यू हैव टू फर्स्ट prepare the policies, you have to frame the policies and plans.
So who will prepare those policies? Who will frame those policies? Top level management will frame those plans and policies. The top level managers also frame the plans and policies to achieve the set objectives. जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, अब उनको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी. अब एक पॉलिसी का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है. इट कैन बी सेड, इट कैन बी अ सेल्स पॉलिसी ऑफ अ कंपनी टू जस्ट मेक कैश सेल्स. अब सेल्स क्रेडिट सेल्स भी हो सकती है, कैश सेल्स भी. क्रेडिट सेल्स मीन्स जो हम उधार पे सामान बेचते हैं, एंड कैश सेल्स मीन्स जो सेम टाइम पे हम अमाउंट या पेमेंट ले लेते हैं. तो एक पॉलिसी बनाई गई टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा कि जो हमारी सेल्स होंगी वो सिर्फ कैश बेसिस पे होंगी, क्रेडिट बेसिस पे नहीं होंगी. सो दिस इज़ वन ऑफ द पॉलिसी सेट बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज़. अब आपको ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ आपको करनी पड़ेंगी, राइट. सो डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर टू बी परफॉर्म्ड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर सेट सच एज सेल्स, परचेज, एडवर्टीजमेंट, प्रोडक्शन, रिसर्च एट्सेट्रा. आपको वेरियस एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं अगर आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है. सो उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं? सेल्स, परचेज, एडवर्टीजमेंट. दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स. सो दीज आर डिटरमाइंड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट. कितनी एक्टिविटीज़ की जाएंगी, हाउ मैनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ विल बी डन इन ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ ऑल सेट बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट. ये सारा कुछ डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा. नेक्स्ट पॉइंट इज असेंबलिंग रिसोर्सेज. रिसोर्सेज देखिए, अगर आपको कुछ भी काम करना है, यू नीड रिसोर्सेज. आपको काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है. आपको कैपिटल की ज़रूरत होती है, आपको रॉ मटेरियल की नीड होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होती है. ऑल्सो यू नीड एसेट्स फॉर प्रोडक्शन. तो आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं प्रोडक्शन करने के लिए, या फिर यू कैन से टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स. सो असेंबलिंग रिसोर्सेज. इन रिसोर्सेज को असेंबल कौन करता है? ये करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट. द रिसोर्सेज आर असेंबल्ड फॉर रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स लाइक कैपिटल मीन्स आपको फाइनेंस चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है प्रोडक्शन करने के लिए, और यू कैन से फिक्स्ड एसेट्स भी चाहिए होती हैं, मशीनरी चाहिए, लैंड चाहिए. तो ये सारे रिसोर्सेज असेंबल कौन करेगा, इकट्ठे कौन करेगा? दिस विल बी डन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट. The top level management arranges all the finance required to carry on day to day activities. जितना भी फाइनेंस डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए या एसेट्स परचेज करने के लिए चाहिए, ये सब चीज़ें अरेंज कौन करेगा? दिस विल बी डन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनली. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ, कंट्रोलिंग वर्क परफॉर्मेंस. देखिए, इनके नीचे मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी काम करती हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट भी काम करती है, और वर्कर्स भी काम करते हैं, राइट. सो इनकी वर्क परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. आपने सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे दी, ऑर्डर्स दे दिए, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. टू मॉनिटर देयर प्रोग्रेस, टू मॉनिटर देयर वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा. सो द वर्क इज इन प्रोग्रेस इज क्लोजली मॉनिटर्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट टू गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स. अगर उनको अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, रिजल्ट्स अचीव करने हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा? क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा जो भी उनके अंडर में वर्क कर रहे हैं. So this is done by top level management. Next is approving budgets. अब budgets बनाता कौन है? Budgets are prepared by middle level management. Middle level management में मैंने आपको बताया था कौन आते हैं? Purchase manager, sales manager, marketing manager. तो हर मैनेजर अपने डिपार्टमेंट के लिए क्या करता है? बजट सेट करता है कि हमारे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितना पैसा खर्च होने वाला है. तो ये पहले एक बजट बनाया जाता है. तो प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ये सब बजट बना करके अप्रूव किससे कराएंगे? अप्रूव कराएंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट से. सो द बजट्स prepared by the different department managers are given final shape, that is approval is given to the budgets by top level management. So approval कौन देता है बजट्स को?
टॉप लेवल मैनेजमेंट देता है। मीन्स उसको एक्सेप्ट कौन करता है बजट्स को? टॉप लेवल मैनेजमेंट। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट ने उस बजट को एक्सेप्ट कर लिया तभी वो आगे क्या होगा? अप्लाई होगा, अदरवाइज उसको फिर से रीचेक किया जाएगा। सो दिस इज द 6th पॉइंट। एंड लास्ट पॉइंट इज liaison with outside world. What is liaison? This means relationship with outside world. outside world के साथ कौन रिलेशनशिप मेंटेन करता है? ओनली दी टॉप लेवल मैनेजमेंट। कोई भी डिसीजंस लेने होते हैं, कोई भी डीलिंग करनी होती है बाहर की पार्टीज से, वो एम्प्लॉयज़ नहीं करते, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट नहीं करती, वो कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए अगर कोई टैक्स की बात करनी है या किसी भी मैटर पे बात करनी है गवर्नमेंट ऑफिशियल से, तो वो कौन करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा। The top level management remains in contact with government, competitors, suppliers, media, etc. टॉप लेवल मैनेजमेंट ही इनके कांटेक्ट में रहता है, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट इनके कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, राइट? कोई भी क्रूशियल डिसीजन लेना है या बाहर की किसी भी पार्टी से क्या करना है? इंटरैक्ट करना है, डीलिंग करनी है, तो वो कौन करेगा? Only top level management will do this. So we can say the job of top level management are complex and stressful, demanding long hours of commitment towards organization. देखिए आप कह सकते हो इनका कोई फिजिकल वर्क नहीं होता, बट इनका मेंटल वर्क होता है। सारे डिसीजंस इनको लेने हैं तो इनकी मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होते हैं ये, क्योंकि इनका एक डिसीजन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है, राइट? सो देयर जॉब इज़ सो स्ट्रेसफुल एंड डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स ऑफ कमिटमेंट। ऐसा नहीं है सिर्फ कि जैसे आप अपने स्कूल्स में भी देखते होंगे, जो आपके एमडीज़ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं या चेयरमैन हैं, वो ऑफिस में तो रहते हैं, दे हैव अ कंफर्टेबल जॉब, बट they also do very hard work because they have the most crucial role for the organization. So you can say they have the mental job. उनकी mental job बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उन्हीं को ही सारे डिसीजंस लेने हैं, उन्हीं को ही ऑर्गेनाइजेशन को हाइट्स पे पहुंचाना है. सो देयर जॉब, the job of top level managers are very complex. So thank you so much students, thank you for watching this video, and if you really like this video please hit the like button, and for further videos keep in touch with us. Thank you.